اللہ کی طاقت سے بڑھ کر تمہاری بلڈوزر کی طاقت نہیں ہے. کرسی پر بیٹھے ہو، قوم اور سماج کی مدد کرو. مندر، مسجد، قرآن، ہنومان چالیسا، وندے ماترم، بھارت ماتا، نعرے تکبیر، ان سب کے اوپر جھگڑے بند کرو. مذہب ایشور کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے، شریعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں ہے. لیکن آج ان تمام چیزوں کو سیاست کا اکھاڑا بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کی کوئی رحمت اور اللہ کی کوئی مدد نہیں آتی. کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے کون آیا تھا؟ ابرہہ آیا تھا. اور ابرہہ کے پاس کتنی طاقت تھی؟ آج کل کے سی ایم پی ایم کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ابرہہ اتنا طاقتور تھا، اس کے پاس ایک ہاتھی تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا محمود. وہ ہاتھی نہیں تھا، وہ بلڈوزر تھا. آج کے 10 بلڈوزر، وہ اکیلا ہاتھی کام کرتا تھا. اگر کسی گھر کو گرانا ہو تو اس میں رسی باندھ کر اس ہاتھی کے کندھے میں ڈال دیتا تھا، وہ ہاتھی آرام سے جاتا تھا، پورا گھر گر جاتا تھا. جب اس کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ چلا، کیوں؟ کوئی عداوت، صرف اس بات کی عداوت تھی. ابرہہ کو کسی نے بتایا کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے لوگ جاتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ شہر مکہ میں آتے ہیں اور اس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے قریب میں پتھر چومتے ہیں عقیدت کے ساتھ، تب لوگ اپنے گھر کو جاتے. ابرہہ نے کہا کہ ہم کعبے سے بھی زیادہ، بیت اللہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہم ایک کنیسہ بنائیں گے، یعنی ایک گھر بنائیں گے. تو سونے اور چاندی سے انہوں نے ایک ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا، ڈپلیکیٹ سونے اور چاندی سے، اور خوبصورت بنایا. یعنی اتنا بڑا بنایا کہ آدمی اگر ایسے سر اٹھا کر دیکھتا تو اس کا سر سے ٹوپی گر جاتا، اتنا بڑا بنایا. کعبۃ اللہ کے پاس مکہ میں عرب کے ایک آدمی کو پتا چلا کہ ابرہہ نے، یمن کا بادشاہ تھا، حبشے کا بادشاہ، یمن کا گورنر. کہا کہ ایسا ہوا ہے. تو یہ عرب سے وہ آدمی گیا، اس کنیسہ پہ جا کر گندگی کر دی. کہا کہ اچھا، غلط نیت سے ڈپلیکیٹ وہ کیا ہے، کاپی کیا ہے، لوگ ہم گندگی کر دیتے. جا کر ٹوائلٹ کر کے آ گیا. ابرہہ کو پتا چلا کہ مکہ سے ایک آدمی آیا تھا اور ایسے گندگی کر کے گیا. اسی دن طے کر لیا ابرہہ کہ ہم کعبہ کو توڑ دیں گے، ہم کعبہ کو بلڈوزر لگا کر زمین میں ملا دیں گے اور اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. ان کے ماننے والوں کو پوری طاقت کے ساتھ سینکڑوں فوجوں کو لے کر، کئی سو گھوڑے لے کر، کئی سو ہاتھی لے کر، ان میں سب سے طاقتور ہاتھی محمود نامی ہاتھی، وہ ہاتھی نہیں تھا، وہ بلڈوزر تھا. وہ بلڈوزر ہاتھی لے کر آیا، مکہ میں داخل ہوا. مکہ میں جب داخل ہوتا ہے تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد آس پاس میں جتنے بھی اونٹ تھے ان تمام اونٹوں پر قبضہ کر لیا ابرہہ، ظالم بادشاہ. یہ کہا کہ یہ اونٹ کن کا ہے؟ کہا کہ عبد المطلب کا. کہا بلا کر لاؤ عبد المطلب کو. عبد المطلب بلائے. آج ہم مسلمانوں کی اسی بے حسی کی وجہ سے جہاں پر قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے تو اس کو جلدی سننا نہیں چاہتے. ابھی یہیں پر گانا ڈی جے ڈسکو ہو تو پوری رات سنیں گے. اسی وجہ سے آج جو بلڈوزر چل رہا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہے، وہ ہم لوگوں کی اپنے شریعت کے تئیں محبت نہ ہونے کی وجہ سے. آج تک میرے خیال سے آپ کے اس بستی میں ابرہہ کے واقعے کو کسی نے نہیں سنایا ہوگا. کبھی آپ نے سنی ہوں گی، کسی عالم دین نے کسی مسجد میں سنایا ہوگا. میں آپ کو ابرہہ کا وہ واقعہ سنا رہا تھا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. ہم لوگ سورت پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سی سورت ہے، نماز میں پڑھتے ہیں.
अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। मैं इसकी तफसीर करता, आप लोगों को बताता, लेकिन हमारे बदनसीब हैं वो शख्स जो नहीं सुनना चाहते, बदनसीब हैं वो आदमी जो कुरान और उसके वाक़े को नहीं सुनना चाहते। और जब इतनी नफ़रत हो जाए और जब इतनी बेतवज्जुही हो जाए कुरान और हदीस की बातों से, तो अल्लाह ज़ालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है। आप क्या समझ रहे हैं कि आसाम के अंदर साजिश नहीं चल रही? आसाम के अंदर देख लीजिएगा, फिर अगर फ़िरक़ा परस्त ताकत कुर्सी इक़्तिदार पर बैठा, मैं आपको पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। जो बचा खुचा जो आप लोगों का मदरसा और मस्जिद है, सब में आहिस्ते आहिस्ते ताले डलते चले जाएंगे। उस वक्त अपने घर से तकबीर लगाइएगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। इसीलिए मुसलमानों होशियार होने की ज़रूरत है, मुसलमानों अपने कुरान से जुड़ने की ज़रूरत है। मैं बताना ये चाह रहा था, वो वाक़या बताने का मेरा कोई शौक़ नहीं था। उस वाक़े को बताने के बाद मुझे ये बताना था कि अब्दुल मुत्तलिब का यकीन इतना था कि जब अबरहा ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम काबतुल्लाह को नहीं बचाओगे? ये जो मक्का है, ये जो काबा है, इसको नहीं बचाओगे? तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा अबरहा से कि ए अबरहा, मैं तुमसे जंग नहीं कर सकता क्योंकि तू बादशाह है, लेकिन सुन, तू इस घर को तोड़ने के लिए आया है ना, इस मस्जिद को तू नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसका मालिक अल्लाह है और मुझे यकीन है अल्लाह ज़रूर इसकी हिफाजत करेगा। और वही हुआ। ये कहकर अबरहा के सामने अब्दुल मुत्तलिब चले गए मस्जिद के पास, काबे के पास गए, और काबे की में गिलाफ होता, गिलाफ काबे में चारों तरफ, उस गिलाफ को इसे पकड़कर हिलाकर दुआ कर रहे थे अब्दुल मुत्तलिब के अल्लाह, मैं इस बादशाह के सामने नहीं लड़ सकता, इनके पास फौज है, इनके पास बुलडोज़र है, इनके पास पुलिस है, लेकिन ये अल्लाह, तेरे से बड़ा ताकतवर बादशाह आज तक पैदा नहीं हुआ है, तू तो मुकाबला कर सकता है, तू अपनी, तेरा घर है अल्लाह, तू इस घर की हिफाजत कर ले। ए अल्लाह, मुझे तुझ पर यकीन है तू इस घर की हिफाजत करेगा। ये दुआ की और तमाम मक्के वालों को कहा चलो घर से बाहर निकल जाओ। शहर से बाहर निकल गए। अबरहा को गुस्सा आया। अबरहा ने कहा चलाओ बुलडोजर। उसका बुलडोजर पंचर हो गया। उनका बुलडोजर कौन था? हाथी। जो ताकतवर हाथी था वह हाथी बैठ गया मतलब पंचर हो गया, आगे चल ही नहीं रहा था। एक ही हाथी नहीं, 100-200 हाथी, चलो तोड़ना है, सारे के सारे हाथी बैठ गए, उठने के लिए तैयार नहीं। उसको मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, खड़ा तो हो रहा है, उसको दायां बायां चलाता तो इधर भी चलता, इधर भी चलता, पीछे भी चलता, आगे नहीं चलता। क्यों? जानवर को पता चल चुका था कि अल्लाह का अजाब आ रहा है, अल्लाह ने अपने लश्कर को भेज दिया है। अबरहा ने कहा हाथियों को छोड़ो, तुम लोग अपना अपना हथौड़ा लेकर पहुंचो। फौज ने जोश दिखाया और फौज अपने कंधे पर हथौड़ा, कोई पत्थर, कोई लोहा, कोई रॉड लेकर निकला कि चलो काबतुल्लाह को गिराएंगे। करीब पहुंचने ही वाला था कि आसमान से अल्लाह ने परिंदों का एक झुंड भेजा, जिसको कुरान में कहा है वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने तैरन अबाबील, छोटे छोटे चिड़ियों को भेजा। छोटे चिड़िया अबाबील, कितना बड़ा चिड़िया हम लोग उसको देख, इतने छोटे छोटे होते, बहुत छोटे, पकड़ नहीं पाएंगे, इधर से उधर, उधर से इधर। तैरन अबाबील, उसी शक्ल उसी नस्ल की वो चिड़िया है। छोटे चिड़िया एकदम बिल्कुल बादन के तरह घने आ रहे ऊपर। सबके पास
तीन गोली थी, गोली AK-47 की गोली। आज गोली है जो बंदूक की गोली बनाई गई ना, वही तैरन अबाबिल के मुंह के पत्थर को देखकर गोली बनाई गई। तैरन अबाबिल के एक मुंह में पत्थर का टुकड़ा, और कितना बड़ा टुकड़ा था, मसूर की दाल, मसूर दाल बनाते हैं उसमें मसूर डालते हैं, यहां तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, मसूर बोलते हैं, हाँ मसूर का टुकड़ा। ये दाल का दाना कितना छोटा होता है। दो रिवायत है, एक तो मसूर की दाल के दाने के बराबर या चने के दाल के दाने के बराबर 3 टुकड़ा, एक मुंह में, दोनों पैर में पकड़ के लिए हुए आ रहे हैं, ऊपर में आ रहे। अब रहा का लश्कर काबतुल्लाह के चारों तरफ है। इन चिड़ियों ने उनके ऊपर आकर एक एक पत्थर छोड़े। कहा गया कि वो पत्थर का दाना जिसके सर पर लगा वहीं पर जमीन में धंसा दिया। इतनी ताकत, वो ताकत, क्या इतनी ताकत एक मसूर के दाने के बराबर पत्थर में हो सकती है? नहीं, वो ताकत नहीं थी, वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से वो मार व अज़ाब था। जब अल्लाह चंद मिनटों में फजालहुम कास्फिम माकूल, भूसे के खाए हुए भूसे के मानिंद बना दिया। खाया हुआ भूसा हम लोग अपने गौरू को, गाय को, गाय मतलब योगी जी की अम्मा, गाय को, जानवर को हम लोग लगाते हैं भूसा, देखते हैं कि वो खा करके आधा इधर आधा उधर कर देता, उसी को बोलते हैं फजालम कास्फिम माकूल। खाए हुए भूसे के मान कर दिया चंद सेकंडों के अंदर, कोई नहीं बचा। जिसके हाथ में लगे वो पत्थर के टुकड़े तो वहीं हाथ कटकर गिर गया और पूरा इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल गया। अब रहा के पैर में लगा, पैर कट गया, किसी तरह घोड़े पर बैठा दौड़ता हुआ भागता हुआ गया, वहां पर उसी बीमारी में मर गया। यानी आधे से ज्यादा लोग वहीं पर दफन हो गए, वहीं पर मर गए। ये होता है जब अल्लाह अपने बैतुल्लाह काबे की हिफाजत तब कर सकता है तैर नबाबिल को भेजकर, क्या आज नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन किसकी जरूरत है? नेक अमल की जरूरत है, दुआ की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, कुरान से मोहब्बत की जरूरत है। लेकिन मुसलमान जानकर नमाज छोड़ता है, मुसलमान शराब पीता है, हमारा नौजवान जुआ खेलता है, हमारा मुसलमान चुगलखोरी करता है, हमारा मुसलमान बेईमानी करता है, हमारा मुसलमान हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी करता है, पैसा लेकर बेईमानी कर लेगा नहीं देगा, हमारा मुसलमान हर गुनाह में आगे। ए मुसलमानों, अगर गुनाह करोगे तो तुम दफन कर दिए जाओगे, अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ सकती। वरना आज भी अल्लाह की मदद तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह की ताकत तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। वैसा ईमान और वैसा नेक अमल की जरूरत है।